Namaskar. Welcome to Ek Vartalap at Arunim Ankuran. April 2nd is World Autism Awareness Day. On this occasion, we would like to contribute to creating awareness by having a panel discussion. We are delighted to have panelists Ms. Lakshmi Mungela, a special educator, and Mrs. Shailja Singh, a warrior mom, to have a discussion about autism and what we can do about it. So both of you, welcome to Ek Vartalap at Arunim Ankuran. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. A word about Arunim Ankuran. This is an initiative for positive social change through self-development. The goal is greater well-being and happiness for all. At Arunim Ankuran, we believe that each person is unique and special in some way, that each person can make a difference, that each person can create an impact, and that's what inspires us to keep going. Special education teacher, because multitasking ninja is not an official job title. She's an amazing person. Miss Lakshmi Mungela is a special education teacher at Saraswati Vidyalaya, making a difference to the lives of so many beautiful children. Autism doesn't come with a manual. It comes with a parent who never gives up. Mrs. Shailja Singh is one such warrior mom, and we are so grateful that she could find time to join us here today. We look forward to having a discussion with them. In 2008, the United Nations General Assembly unanimously declared 2nd April as World Autism Awareness Day to highlight the need to help improve the quality of life for people with autism so that they can lead full and meaningful lives as integral part of the society. The theme of World Autism Day 2023 is color. What is autism? Autism is a developmental disability that affects how a person communicates with and relates to other people. It also affects how they make sense of the world around them. It is a spectrum condition. This means that while all people with autism share certain difficulties, their condition will affect them in different ways. Individuals with autism can lead full lives. We have so many examples around us in the world of very successful people. Anyone can lead a fulfilling life despite having autism. People with autism have both strengths and weaknesses just like the rest of us do. Being autistic does not preclude you from having meaningful relationships, making friends, or finding employment. I think this is a strong message we would like to send across. What are the talking points? What is autism? How does it get diagnosed? What should be the role of parents? Can a child with autism lead a normal life? What should be the role of society? What should be the role of educational institutions? Sometimes angels are disguised as kids with special needs and to teach us how to be better people. Arunim Ankuran appeals to all members of the society on the occasion of World Autism Awareness Day. In a world where you can be anything, be kind. So, warm welcome to both of you and thank you for joining us here. We will start with Lakshmi. For the benefit of everyone who's listening in, Lakshmi, can you give us an insight into what is autism and how it can be diagnosed? Yes. Sure, मैम. So, ऑटिज्म मतलब जैसे कि आपने भी पीपीटी में बताया कि यह एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है. ऑटिज्म बच्चे जन्म से ही ऑटिज्म हो सकते हैं या वो अपने साल के 2-2.5 साल या 3 साल में हमको पता चलता है कि इन बच्चों में ऑटिज्म है. ऑटिज्म बच्चों को कैसे पहचानना है? ऑटिज्म बच्चों का सबसे पहला सिम्टम ये है कि वो सोशल नहीं होते. वो कभी आपको आई कांटेक्ट नहीं देंगे, आपसे कभी देखकर बात नहीं करेंगे. अगर उनको पूछा जाएगा व्हाट इज योर नेम तो वो बोलेंगे व्हाट इज योर नेम. वो कभी रिप्लाई नहीं करेंगे, वो रिपीट करेंगे. उसी तरीके से कुछ जेस्चर्स होते हैं जैसे हैंड क्लैपिंग करना, क्लैपिंग करना, बैबलिंग करना, जोर जोर से चिल्लाना, मतलब एक ही साउंड को बार बार जोर से चिल्लाना, उसी तरीके से वो एक्सप्रेस करते हैं. तो इस तरीके के आइडेंटिफिकेशन सिम्टम्स होते हैं जिससे हम जान सकते हैं कि उनको ऑटिज्म है या वो ऑटिज्म से सफर कर रहे हैं. दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि यह एक स्पेक्ट्रम है. हर बच्चा यूनिक है.
सभी बच्चों में जितने भी बच्चे ऑटिज्म हैं वो बच्चे अलग है, यूनिक है। मान लो किसी बच्चे का आईक्यू नॉर्मल हो सकता है पर स्पीच डिले होगा, किसी बच्चे में लैंग्वेज अच्छा होगा लेकिन कुछ बिहेवियर के इश्यूज होंगे, और कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव होंगे। तो ऑटिज्म प्लस डिले लैंग्वेज, ऑटिज्म प्लस बिहेवियरल इश्यूज, ऑटिज्म प्लस मतलब अलग अलग टाइप का जो भी बिहेवियर है, ऐसे बहुत सारे बिहेवियर उनमें पाए जाते हैं। एडीएचडी बोल सकते हैं हम, है ना। तो ऑटिज्म तो है लेकिन सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, इसलिए इसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और हमने देखा है कि ऑटिज्म बच्चों के जो आईक्यू होते हैं कई बार नॉर्मल होते हैं, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने अभी बताया कि लैंग्वेज इशू, एक्सप्रेस नहीं कर पाने की वजह से उनके डेवलपमेंट में डिले आता है। कई बार बच्चों के फाइन मोटर डेवलप नहीं होते हैं, आई हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं होता है, अटेंशन स्पैन अगर नहीं है, मान लो वो एक जगह अगर नहीं बैठ पा रहे हैं तो कोई भी चीज सीखने में उनको बहुत तकलीफ होती है। तो इस तरीके से उनका डेवलपमेंट हमेशा डिले दिखाई देता है। तो यह कुछ बेसिक जानकारी है ऑटिज्म बच्चों के बारे में। हम लोग शैलजा से पूछने जाएंगे कि जैसा लक्ष्मी ने बताया, इसमें जी पेरेंट्स का नेचुरली एक बहुत बड़ा रोल है ताकि वो उस चीज को आइडेंटिफाई कर पाए और डायग्नोसिस अचीव करने में प्रोएक्टिव रहे। उनका एक रोल है कि जब उनको लगे, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी कि आपको कब पता चला और कैसे पता चला? मैम, मेरा बेटा जब 2.5 years का था तो वो नॉर्मल बच्चों के जैसे सबके साथ खेलना, और जैसे कि मैम ने बोला कि आई कांटेक्ट करना, बिल्कुल आई कांटेक्ट करके, जैसे सपोज थर्ड पर्सन मेरे से तो वो कंफर्टेबल है, पर कोई थर्ड पर्सन आया तो उसने पूछा बेटा आपका नाम क्या है, तो वो मेरे तरफ देख के बोलेगा अजात शत्रु सिंह। तो मतलब वो थर्ड पर्सन से बिल्कुल फैमिलियर, यहाँ तक कि अभी भी वो उतना नहीं हो पाता मैम। अभी ना वही ही इज 18 years old, बट अभी भी वो उतना, जैसे थर्ड पर्सन कोई आएगा तो वो कंफर्टेबल नहीं रहता है। थोड़ी देर 2 4 10 बार उनसे मिलेगा तो थोड़ा उससे कंफर्टेबल होगा, पर एकदम से किसी से मिलने से वो कंफर्टेबल नहीं रहता। अगर उसने पूछा तो वो दूसरे तरफ मुंह करके जवाब देगा कि मेरा नाम ये है। हाँ, तो आई कांटेक्ट तो ये बच्चे बिल्कुल नहीं करते। और दूसरा सोशल, बाकी सब बच्चों के साथ खेलना है, किसी थर्ड पर्सन के साथ कहीं भी जाने के लिए कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। तो ऐसा अजातशत्रु 2.5 years में करते थे, तो घर में सब बोले कि शायद ये बॉय है, डेवलपमेंट लेट होता है। तो मैम हम भी उस चक्कर में हमने भी उसका चेकअप नहीं कराया। लेकिन जब वो नर्सरी के लिए स्कूल जाना शुरू किए तो फिर वहां से कंप्लेन आना शुरू हुई कि वो रोमिंग करते हैं, एक जगह बैठते नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं करते, तो आप किसी डॉक्टर को दिखाइए। फिर हम इनके पीडियाट्रिक्स के पास लेके गए, तो फिर उन्होंने हमको बताया कि नहीं आप इसको, मुझे लगता है कि शायद एडीएचडी है, आप कहीं भी साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाइए। तो फिर हम डॉक्टर के पास लेके गए मैम, तो हमको पता चला कि आजाद को माइल्ड ऑटिज्म विद एडीएचडी है। तो उतना सुनते ही मैम थोड़ा तो बहुत हमको एकदम, क्योंकि हम उसके पहले ये जानते ही नहीं थे कि एडीएचडी क्या होता है, ऑटिज्म क्या होता है ना। फिर हम थोड़ी देर के लिए बहुत अपसेट हुए और हमको लगा शायद डॉक्टर ऐसा ही बोल रहा है, ठीक हो जाएगा अजात शत्रु। पर नहीं मैम, फिर हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ा कि हमारे बेटे को कहीं पे दिक्कत है, अब हमें उसके लिए काम करना होगा। पर ये ऐसे ही हमको पता चला मैम कि अजात शत्रु में माइल्ड ऑटिज्म का प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है शैलजा आपने जो शेयर किया इससे बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हम देना चाहते हैं सबको। देखिए वो उन्होंने ये इनविटेशन शेयर किया और वो इतनी ओपनली बात कर रही हैं इसके बारे में, तो ये एक मैसेज है हम सबके लिए समाज में कि ऑल ऑफ अस आर डिफरेंट एंड यूनिक इन सम वे। तो हम उन बिल्कुल बच्चों को अपना एक हिस्सा मान के चले, वो कोई उनको अलग जैसे ट्रीटमेंट देना हम लोग की कमी है, उनकी कमी नहीं है। बिल्कुल। और मैम मुझे तो लगता है कि जितना जल्दी पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे कि उनके बच्चे को दिक्कत है, यस, उतने ही उसके भविष्य के रास्ते खुलेंगे, क्योंकि हम फिर उसके लिए काम करेंगे। और हम अगर उसको छुपा के रखेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, लोग क्या सोचेंगे, लोग जान जाएंगे, तो लोगों के जानने ना जाने से बल्कि लोगों को और अवेयर कराना चाहिए कि ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके साथ आप भी वैसे ही बिहेव करिए जैसे आप नॉर्मल बच्चों के साथ बिहेव करते हैं। बिल्कुल। मैं यहाँ पर अपनी बात रखना चाहूंगी मैम। जी
मैम ने जैसे कहा कि जल्दी से जल्दी पेरेंट्स ने पहचानना चाहिए। सही बात है मैम, अगर सभी बच्चों को अर्ली इंटरवेंशन का पीरियड मिल जाता है, जल्दी डायग्नोस हो जाते हैं, तो उनको ट्रीटमेंट करने में बहुत आसानी होती है मैम। मतलब वो पीरियड अगर हम मिस ना करें, पेरेंट मिस ना करे, तो बच्चा शायद उस सीवियर लेवल तक नहीं जाएगा, तुरंत उनका ट्रीटमेंट होगा और रिजल्ट वैसे नहीं होंगे जैसे कि समय निकलने के बाद होता है। तो सभी पेरेंट्स ने, मैं मानती हूँ कि ये एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है कि हमारे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, या वो स्पेशल चाइल्ड है, या वो पूरी दुनिया से अलग है। ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है, अगर कोशिश करे पेरेंट्स की नहीं पता करने की कि है क्या, और इस तरीके से अगर डायग्नोस मिल जाता है, तो जल्दी उनको ट्रीटमेंट, अर्ली इंटरवेंशन का प्लान भी अवेलेबल हो जाएगा। और लक्ष्मी, बिकॉज आप एक स्पेशल एजुकेटर हैं और आप इस तरह से बहुत बच्चों को हेल्प कर रही हैं, पेरेंट्स को हेल्प कर रही हैं, तो क्या क्या इंटरवेंशन हैं और वो किस तरीके से डिलीवर किए जाते हैं, उसके बारे में बताइए। श्योर मैम। सबसे पहले तो मैंने बताया कि जैसे ही पता चलता है पेरेंट्स को 2-2.5 साल में कि बच्चे ने अचानक बात करनी बंद कर दी है, या फिर उनके बिहेवियर आपको लग रहा है कि ये बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, या उनके माइलस्टोन्स वैसे डेवलप नहीं हो रहे हैं जैसे एक साधारण बच्चे के डेवलप होने चाहिए, तो तुरंत पेरेंट्स ने डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को कांटेक्ट करना चाहिए। वह सारे माइलस्टोन की जांच पड़ताल करेंगे, मतलब वो पेरेंट्स से ही बात करते हैं कि ये कब खड़े हुए, इन्होंने कब रिएक्ट करना शुरू किया, ये सारी चीजें पूछकर वो पूरा हिस्ट्री लिखेंगे, और उससे आपको एक रिपोर्ट बना के देते हैं कि इनके सभी माइलस्टोन सही समय पर डेवलप हुए या नहीं हुए। और अगर हमको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है और उनको मेडिकेशन की जरूरत है, तो पेरेंट्स जरूर साइकेट्रिस्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी तरीके का साइकोलॉजिकल इशू, मान लो कोई टेस्टिंग हमको करवानी है, तो साइकोलॉजिस्ट से पेरेंट्स जाकर मिल सकते हैं। बॉडी कोऑर्डिनेशन, माइंड कोऑर्डिनेशन, किसी कोऑर्डिनेशन का अगर कोई स्किल लैकिंग लगता है, मान लो बच्चे में चलने में कोई प्रॉब्लम दिखे, या फिर हाइपर एक्टिविटी दिखे, स्पीच लैकिंग दिखे, तो वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। और जैसे बोन्स का कोई इशू हो, कोई बोन टेढ़ा है, डब्ल्यू सिटिंग कर करके बॉडी पोस्चर खराब हो गया है, ऐसे भी बच्चे आजकल ज्यादातर डब्ल्यू सिटिंग करते हैं, इस तरीके के बच्चों को पीडियाट्रिशियन के पास दिखा सकते हैं। और एकेडमिक इशू हो, परसेप्शन का इशू हो, या हाइपर एक्टिविटी पर काम करना हो, तो स्पेशल एजुकेटर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे इस फील्ड में अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग एक्सपर्ट हैं, तो उनसे पेरेंट्स जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। शैलजा, आपसे पूछते हैं हम लोग कि किस तरीके से आपने, जब आपको डायग्नोसिस हो गया, तो वो मुझे लगता है एक स्टेप 1 है, आपको पता चल गया, उसके बाद आपका क्या आउटलुक रहा और आपने क्या स्टेप्स लिए? उसके बाद मैम हम उसको एक्चुअली मेरे बेटे को फाइन मोटर का दिक्कत है मैम, उसको हाथ में ग्रिपिंग का दिक्कत है, तो उसके कारण उसका राइटिंग इफेक्ट होता है, वो बहुत देर तक लिख नहीं पाता है, मतलब 1 पेज ही लिखना उनके लिए बहुत बड़ा टास्क रहता है। तो फिर हम उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास लेके गए, वहां उसकी तरह तरह के एक्सरसाइज और हमको जो साइकेट्रिस्ट में भी बहुत सारी थेरेपीज बताई, तो हम फिर सुबह मॉर्निंग, मतलब हमारी तो दुनिया ही अजात शत्रु से शुरू होती मैम, तो हमने अपने आप को उसके हिसाब से ढाल लिया कि हमें उसके लिए वर्क करना है, तो अगर हम उसके साथ मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आगे हमको रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो मैं बहुत सारी थेरेपी सर लोगों से लेके, वो वहां भी सिखाते थे, फिर मैं घर में आके भी, मैं मेरे हस्बैंड दोनों सुबह मॉर्निंग 5:30 से उसका शुरू, और अभी भी उसकी इतनी गुड हैबिट्स है मैम कि वो 5:30 सुबह उठ जाता है, और फिर वो रनिंग करेगा, जो भी उसकी एक्सरसाइज ही होगा, थोड़ा बहुत जो भी उससे बनता है करता है, फिर अपना स्कूल जाएगा। तो मतलब अभी उसको देखा जाए तो मुझे उसके काम कुछ नहीं करने पड़ते मैम। पर हाँ, शुरू में जब वो स्कूल जाता था मैम, मतलब वो हम उसको स्कूल छोड़ के आए और हमको ये डर लगा रहता था कि अब स्कूल से अब फोन आने वाला है, और लिटरली वीक में हमको 6 टाइम, मतलब 6 डेज वीक में हमको 3 to 4 टाइम्स फोन आता था कि अजात शत्रु ने आज वॉमिट कर दिया, अजात शत्रु ने आज ऐसा किया ऐसा किया। हम तुरंत जाते थे, उसको लेके आते थे, मतलब वो एक ना कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था स्कूल में।
उसके लिए उसको मैम 1.5 से 2 साल लगा स्कूल को, एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट करने में। फिर धीरे धीरे फिर ये जब से आजाद शत्रु हमने दूसरा स्कूल शिफ्ट किया, वहां आया, तो वहां उसको बहुत अच्छा, सब दोस्तों के साथ उसको लेके गए उस स्कूल में, टीचर ने भी बहुत कोऑपरेट किया और वहां वो 9th तक बहुत कंफर्टेबल था। पर एज ए स्पेशल एजुकेटर मैं ही उसके साथ जाती थी मैम, अप टू 8th क्लास तक मैं ही रोज जाती थी उसके साथ, सुबह जाती थी और उसके साथ घर आती थी। मुझे लग रहा है, देखिए शैलजा की बात सुन के, कि एक पेरेंट का कितना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है उस बच्चे की ग्रोथ में, क्योंकि उनको एक स्पेशल एजुकेटर की जो स्किल्स हैं वो सीखनी चाहिए, सीखनी पड़ी इनको, और सबको भी सीखनी चाहिए। और मुझे बहुत खुशी हुई ये सुन के कि विद अ सेंस ऑफ प्राइड शी कैन से टुडे कि उसकी बहुत अच्छी हैबिट्स हैं, वो 5:30 बजे उठता है। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को अजात शत्रु से इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि वो इतनी डिसिप्लिन बिल्कुल लाइफ लीड कर रहे हैं। तो और मैम इन बच्चों में क्या रहता है कि जैसे एक बार हमने जो इनको लाइफ स्टाइल सिखा दी, फिर उसको हम ही को चेंज करने में हम पसीना हो जाएंगे, लेकिन वो चेंज नहीं होती। इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि सभी पेरेंट्स को शुरू से ही ऐसी गुड हैबिट्स डालिए और पहली बार में उनको सही चीज बताइए, क्योंकि ये बच्चे फिर मोल्ड नहीं होते मैम। जिस रास्ते में जा रहे हैं, अगर हमने कहा ये ऐसा है तो वो वैसा ही है, बाद में अगर हम गलत है तो भी वो बच्चे, अगर आप आंसर पूछोगे तो वही उल्टा ही जवाब देंगे जो हमने उनको फर्स्ट टाइम सिखाया है। इसलिए मैं सभी से यही कहूंगी कि जब भी सिखाएं सही चीज सिखाएं फर्स्ट टाइम पे ही। ऐसा नहीं कि हम धीरे धीरे सिखाएंगे फिर बच्चे सीख जाएंगे, नहीं, ये तो एक बार जो रास्ता पकड़ लेते हैं तो फिर उससे उनको डाइवर्ट करना बहुत मुश्किल होता है मैम। एक पैटर्न फॉलो करते हैं मैम। हमने अगर उनको कोई पैटर्न सिखाया है या उन्होंने कोई पैटर्न अडॉप्ट किया है तो वो उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। जैसे अगर उन्होंने जूते उतारे हैं तो उसको वो ठीक से ही रखेंगे। मान लो उल्टा पड़ा है उसको सीधा करेंगे, किसी और का जूता उल्टा है उसको भी सीधा करके आएंगे। और उनको हर चीज सिस्टमैटिक वे में चाहिए, कोई भी चीज यहाँ वहां रखी हुई उनको पसंद नहीं आती है। हमेशा साफ सुथरा, मतलब जैसा उन्होंने पहली बार वो चीज को देखा था वो दोबारा उसको वैसा ही देखना पसंद करते हैं। वो बिल्कुल भी मेसी पसंद नहीं करते हैं। तो ये एक पैटर्न हम हमेशा ऑटिज्म बच्चों में पाएंगे। यस मैम, इसके लिए मैं बिल्कुल एग्री हूँ। मेरा बेटा मतलब उसका कभी भी घर में कोई सामान जो उसने जहां से उठाता है वो वहां ही रखता है। इवन मेरी बेटी पूरे घर में सामान फैला के रखती है, लेकिन उसका जो चीज है जहां से निकालेगा वो, इवन उसका सामान भी उसको पता है कि यहाँ रहता है तो उसका भी उठा के रखेगा। तो वो जो आपने बोला मैं उसके लिए बिल्कुल एग्री हूँ कि ये जो एक बार जो पैटर्न इनकी लाइफ में कि जहां से मैंने शूज उठाए वहां रखना है, जहां से मैंने बुक, इवन स्कूल बैग में मैम वो किस पार्ट में कौन सा चीज रखेगा, अगर मैंने डिस्टर्ब करके इधर उधर रख दी तो वो स्कूल जाने के पहले देखेगा कि मम्मा ने ऐसे डिस्टर्ब तो नहीं किया। अगर सपोज कभी डिस्टर्ब हो जाता तो वो वापस उसी जगह पे रखेगा, फिर बैग बंद करेगा, फिर जाएगा। मतलब एक जो पैटर्न वो बिल्कुल फॉलो करते हैं उसके लिए। तो लक्ष्मी, आप क्या कहना चाहेंगी? बिकॉज शैलजा इज एन अवेयर पेरेंट जिन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, सो शी इज अ वॉरियर मॉम ऑलरेडी। लेकिन जिन पेरेंट्स को दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कैन यू शो अस सम स्टेप्स टू गाइड देम? श्योर मैम, जैसे कि मैंने बताया मैम, अर्ली इंटरवेंशन का बहुत बड़ा रोल होता है। पेरेंट को सबसे पहले तो अगर डॉक्टर कुछ गाइड कर रहे हैं कि आपके बच्चे में ये इशू दिख रहे हैं, ये सिम्टम दिख रहे हैं, तो पेरेंट को अग्री करना चाहिए। मैं जरूर मानती हूँ ये बहुत ही मुश्किल दौर होता है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि अपने उनके कुछ सपने होते हैं अपने बच्चे के साथ, उन्होंने देखे होते हैं, और अचानक ऐसा अगर कुछ उनको बताया जाए कि ये स्पेशल चाइल्ड है या इनमें और कुछ अलग चीजें हैं तो थोड़ा मुश्किल जरूर होता है। लेकिन फिर भी अगर डॉक्टर बोल रहे हैं तो अग्री करके उन्होंने जो भी, जैसे डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को विजिट करना चाहिए, फिर उनके गाइडलाइंस से जो भी स्टेजेस है मैम वो स्टेजेस फॉलो करने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और सबसे बड़ा रोल यहाँ पर पेरेंट्स का होता है मैम। एज अ थेरेपिस्ट मैं शायद 1 घंटा बच्चे के साथ काम करूंगी, पर बाकी के जो घंटे होते हैं वो माता पिता को अपने बच्चों के साथ बिताने पड़ते हैं। और बच्चा देखकर ज्यादा सीखता है, वो जो देखेंगे वैसे सीखेंगे। तो वो जो भी चीजें दिखेंगे, उनके पेरेंट के साथ जो भी एक्टिविटीज करेंगे, रूटीन एक्टिविटीज,
उसको अच्छे से लर्न कर पाएंगे। हम उनको एक कमरे के अंदर थेरेपी दे सकते हैं, लेकिन घर में उनकी रोजमर्रा की जो चीजें हैं, उनको कैसे अपना जीवन जीना है, ये सब उनके माता पिता ही प्रैक्टिकल लाइफ उनको सिखा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि उनको अपने बच्चों के लिए समय निकालना ही पड़े। मतलब वही फर्स्ट थेरेपिस्ट है और बाद में हम लोगों का नंबर आता है, ऐसा मुझे लगता है। शैलजा, हम लोग एक समाज में रहते हैं, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हम आज अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो समाज है उसका क्या दायित्व होना चाहिए, और आपकी क्या चैलेंजेस आपने फेस किए बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड ऑफ अदर पीपल? मैम, चैलेंजेस तो मैं पिछले 18 साल से फेस कर रही हूँ। और शायद मैं सोसाइटी में 80% ऐसे लोग होते हैं जो वो सोचते हैं कि जब हमारे बच्चे को या हमारे फैमिली में किसी को दिक्कत नहीं है, फिर हम क्यों इनकी बात सुने, क्यों हम अवेयर हो। लोगों का सोचना ऐसा रहता है मैम। तो सोसाइटी तो शायद एक्सेप्ट ही, बहुत ही कम लोग होते हैं मैम जो ये बच्चों को एक्सेप्ट करते हैं। बाकी तो सब लोग जो पहले के जमाने में मैम, अब तो इन बच्चों को कुछ अलग अलग नाम दिए गए। पहले तो लोग कहते थे अरे पागल है, पढ़ता नहीं, उसको दिमाग नहीं। लोग अभी भी, मतलब मुझे लगता है मोर देन 50% लोग अभी भी वही थिंकिंग रखते हैं मैम। और ऐसा तो हम बड़े शहर में हम आप रह रहे हैं तो थोड़ा लोग अवेयर है, लेकिन छोटे शहर में मैं कई बार जाती हूँ मैम। हम लोग चूंकि गांव से भी रिलेटेड है, वहां भी जाती हूँ, वहां भी मैं बच्चों को देखती हूँ, तो उन बच्चों को प्रॉब्लम है, लेकिन वो पेरेंट्स या उनके फैमिली वाले वो सोचते हैं कि अरे इनको ये पढ़ेंगे लिखे नहीं, ये तो ऐसे ही है, इनका दिमाग नहीं है। तो सोच के मुझे वही लगता है कि कम से कम इतना तो अवेयर हो जाइए कि अपने बच्चे के लिए काम करिए। और हमारी तो दुनिया ही मैम बच्चे हैं, सब किसी के लिए भी उनकी दुनिया उनके बच्चे हैं। जब हम उनके लिए काम नहीं कर पाए तो हमने फिर क्या किया। मेरा तो यही सब पेरेंट्स से कहना है कि सबसे पहले आप एक्सेप्ट करिए और उसी दिन से उसके लिए जुट जाइए काम करने में। और अगर हम ये सोच के कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों, तो ये गलत है। या आप जैसा भी हो गया, आप उसके लिए काम करिए। समाज तो मैम कभी, बहुत ही कम लोग होते हैं जो हमारे बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि आप कहीं भी पब्लिक प्लेस में जाइए, लोग वहां, अगर किसी के बच्चे को दिक्कत है तो सारे लोगों की नजर उसी की तरफ रहती है। बल्कि वो तो उससे बच्चा और अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो सोचता है मुझे ही क्यों सब देख रहे हैं, बाकी बच्चे भी तो है, उनको कोई नहीं देख रहा है। पर उसको ही सबको, शायद उनको इतना क्यूरियोसिटी रहता है कि बच्चे की माँ हमको बताए कि ऐसी ऐसी दिक्कत है। हाँ। तो मैं तो बिल्कुल यही पेरेंट्स से कहूंगी कि अगर सामने वाले को क्यूरियोसिटी है तो बता दीजिए, एक बार में उसकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। है, और अगर हम उससे छुपाएंगे तो उसका और क्यूरियोसिटी बढ़ता है मैम। तो समाज तो बहुत, उसको समझाना मतलब बहुत बड़ा टास्क है। शायद मैं तो हार गई मैम। यही कहूंगी, क्योंकि अगर मैं किसी को बोलती हूँ कि, तो उनको क्या लगता है इसके बच्चे को दिक्कत है इसलिए इसको ऐसा समझ में आ रहा है कि अवेयर होना चाहिए या ये होना चाहिए। कोई नहीं सुनता मैम, बहुत मुश्किल है ये टास्क। लक्ष्मी, आप क्या कहना चाहेंगी इसके बारे में? मैं यही कहना चाहूंगी मैम कि ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है सोसाइटी में। हम जो इस फील्ड के हैं, जितने भी लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के लिए, मुझे ऐसा लगता है हम लोगों ने ही इनिशिएटिव लेना चाहिए और सोसाइटी में एक अवेयरनेस देना चाहिए। जैसे हम देखते हैं आजकल के माता पिता जो होते हैं, सभी अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, और भी मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जो बहुत ही कॉरपोरेट लेवल पे है, ये सारी चीजें बच्चे पसंद करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमारा जो फील्ड है, स्पेशल एजुकेशन का फील्ड है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ये जितने भी स्पीच थेरेपी, ये जितने भी थेरेपीज है, इसके बारे में भी सोसाइटी में अवेयरनेस बहुत कम है। तो हम जैसे लोग अगर आगे बढ़े, 12th पास जो होने वाले बच्चे हैं या एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हैं, 10th के जो बच्चे हैं, उन लोगों से जाकर मिल सकते हैं, पीपीटी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर के अलावा भी ऐसे कोई फील्ड है जहां पर आप अपना फ्यूचर देख सकते हो, अपने करियर के लिए काम कर सकते हो। और हम उनको ये भी बता सकते हैं कि यहाँ सिर्फ आपको पैसा नहीं मिलेगा, पर आपको एक मीनिंगफुल लाइफ मिलेगा, लाइफ में सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और आप काम करके बहुत अच्छा महसूस कर पाओगे। और ये हमको हमारे जनरेशन को
एजुकेट करना पड़ेगा मैम, ये हमारी जिम्मेदारी ही है, मुझे ऐसा लगता है। तभी जैसे शैलजा मैम ने बोला उनकी प्रॉब्लम के लिए हम थोड़ी बहुत मदद कर पाएंगे। तो शैलजा, आपके जो एक्सपीरियंसेस, हाँ प्लीज बोलिए। हाँ, मैं इसके लिए ये बोलना चाहूंगी मैम, जैसे मैम बोल रहे हैं कि सबको एजुकेट करना चाहिए, तो मुझे लगता है सबसे पहले तो स्कूल में जितने टीचर हैं, जो कि बच्चा माँ से ज्यादा टीचर की बात सुनता है ना। कई बार टीचर को मिस्टेक कॉपी में लिखवाती है, हम कहेंगे नहीं ये गलत है, आप इसको सही करिए, पर वो बच्चा नहीं लिखता, नहीं नहीं नहीं, हमारी मैम ने कहा है तो वो करेक्ट है ना। तो मैम मुझे तो लगता है कि सबसे पहले जैसे स्कूल में लोग आजकल टीचर को कि बीएड कंपलसरी, उसके साथ हर टीचर को स्पेशल एजुकेटर की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल बच्चों को तो मैम सब कुछ कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन पढ़ाने की कला तो टीचर के तब दिखेगी जब वो इन बच्चों को पढ़ा ले। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल इतना लेवल में पढ़ा सकता है कि वो एकदम टॉप ही कर ले, लेकिन कम से कम इतना कि वो अपना पढ़ाई क्या चीज होती है, कैसे पेपर सॉल्व करना है, ये सब तो उनको कराने के लिए टीचर को, मतलब हमको लगता है गवर्नमेंट को भी ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि विदाउट स्पेशल एजुकेटर ट्रेनिंग कोई भी टीचर को स्कूल में नहीं मिलेगा अपॉइंटमेंट, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैम टीचर ही अवेयर कराएगा, टीचर अवेयर बच्चों को कराएगा तो पेरेंट्स भी को भी लगेगा कि हाँ स्पेशल एजुकेटर की भी ऐसी ट्रेनिंग होती है, और लोग करते हैं, लोग टीचर बनते हैं। और अभी कैसा मैम स्कूलों में जैसे काफी फीस लेते हैं, फिर उसके बाद बच्चे को अगर दिक्कत है तो 10,000 रुपीज चार्ज करते हैं स्पेशल एजुकेटर का। मैम जो पेरेंट्स सक्षम नहीं है देने के लिए, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, और थक हार के वो कहते हैं ठीक है भाई जैसा चल रहा हम नहीं रख सकते स्पेशल एजुकेटर, और स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर है उसके पीछे 50 बच्चे हैं। आजकल मैम ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, एक्चुअली थी पहले भी, पर लोग उतने जागरूक नहीं थे इस सब चीजों के बारे में। तो टीचर एक है, बच्चे 50 हैं, तो वो बेचारा वो भी किसको किसको ध्यान देगा। तो स्कूल ही ये मिरेकल कर सकता है कि सारे टीचर्स को स्पेशल एजुकेटर की ट्रेनिंग दिलवाए और इन बच्चों के भविष्य के लिए अच्छे से काम करे। एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है ये आपका शैलजा, और मुझे लगता है इसका एक फ्लिप साइड भी है, क्योंकि जो बच्चे उनके क्लासमेट्स हैं वो ही इस समाज का हिस्सा बनेंगे बड़े होके। तो अगर टीचर उन बच्चों को भी इस चीज के बारे में अवेयर और थोड़ा सेंसिटाइज करें, तो ये एक पूरे समाज में एक बहुत पॉजिटिव परिवर्तन हम लोग देख पाएंगे कि लोग समझते हैं इंक्लूसिविटी, इंक्लूजन जिसको बोलते हैं, कि उनको हम अलग खड़ा करके एक मिसाल ऐसे नमूने जैसा मत बनाएं। वी शुड बी एम्ब्रेस करना चाहिए उनको। बल्कि मैम मैं तो एक चीज ये कहना लगूं कि इन बच्चों को पीयर ग्रुपिंग के थ्रू बहुत चीजें सिखाई जा सकती हैं। देखिए केवल इन बच्चों को नहीं, नॉर्मल बच्चे भी अपने दोस्तों के साथ जो सीखते हैं वो हम कितने बार भी सिखाते हैं वो बच्चे नहीं सीखते, लेकिन दोस्तों के साथ गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स जो भी हैं तुरंत सीख जाते हैं। तो मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े जिसमें इन बच्चों के लिए तो पीयर ग्रुपिंग बहुत जरूरी है मैम, क्योंकि ये बच्चे अपने क्लासमेट, लेकिन इन बच्चों को आइसोलेट कर दिया जाता है कि ये इनको प्रॉब्लम है तो ये स्पेशल सेल में जाएंगे। स्पेशल सेल में एक एजुकेटर और 50 बच्चे हैं। मैम टीचर भी क्या करेगी मैम, वो भी अपना वर्क दे देगी उनको, करो। अब इतने सारे बच्चों को संभालना उसके लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल है। और कई बार जो स्पेशल एजुकेटर है वो बहुत कुछ करना चाहता है पर स्कूल मैनेजमेंट उसको करने नहीं देता, है ना। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मैम। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन बच्चों को नॉर्मल बच्चों के बीच रख के पीयर ग्रुपिंग के थ्रू, स्पेशल एजुकेटर के थ्रू हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। पेरेंट्स को ट्रेंड करिए उस हिसाब से कि भाई जैसे मैम ने कहा कि मेरे पास तो 40 मिनट्स to 1 hour बच्चा रहता है, बिल्कुल सही बात है, और मेरे पास 20 घंटे है। तो अगर मैं मिरेकल नहीं कर पाऊंगी मैम तो कोई नहीं कर पाएगा। पर उसके लिए सपोज कई मदर्स पढ़े लिखे नहीं होते पर ट्रेंड तो हो सकते हैं ना, वो भी तो उनको ट्रेंड कर देंगे तो उनके बच्चे को वो ट्रेंड कर पाएंगे। जैसे कि अभी शैलजा मैम ने 2-3 पॉइंट रखे, मुझे बहुत ही पॉजिटिव लगे और सही बात है। मैं 2 साल से स्कूल में काम कर रही हूँ, तो मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि नॉर्मल टीचर्स के साथ होता क्या है। एग्जैक्ट एक क्लास में 60 बच्चे होते हैं
और 60 बच्चों को देखना उनके लिए बहुत ही मतलब बहुत मुश्किल है। और वो भी जब जैसे प्राइमरी लेवल, प्री प्राइमरी लेवल में तो बहुत ही मुश्किल होता है। वो आजकल के बच्चे इतने ज्यादा एनर्जेटिक है, वो कब कौन सा सवाल पूछेंगे, कब क्या करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो जनरली स्पेशल मॉम्स जो होते हैं उनका हमेशा सवाल होता है कि क्यों, मतलब क्यों टीचर इनके तरफ ध्यान नहीं देती, क्यों इनको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देती। तो वो जो टीचर है उनका ट्रेनिंग एक तो नॉर्मल बीएड में हुआ है, जिनकी वजह से उनके अपने कुछ लिमिटेशंस है। उनको नहीं पता कि स्पेशल एजुकेशन में कैसे काम करना है, या स्पेशल स्ट्रैटेजी क्या है, या किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको क्या रेमेडीज देना है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही ये आना चाहिए कि बीएड में वो सब्जेक्ट डाला जाए स्पेशल एजुकेशन, जिससे टीचर को स्पेशल एजुकेशन मिलेगा। और जब वो इंटर्नशिप करते हैं, मैं देखती हूँ कई बार नॉर्मल बीएड टीचर इंटर्नशिप के लिए हमारे स्कूल में आते हैं लेसन प्लान के लिए। तो 10 लेसन प्लान अगर वो नॉर्मल बच्चों के साथ कर रहे हैं, तो 10 लेसन प्लान वो स्पेशल बच्चों के साथ करे। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि क्लासरूम में कोई स्पेशल बच्चा आया तो अचानक उनको लगेगा अरे बाप रे ये क्या है, कैसे मैनेज करना है। उनको पहले से वो बच्चों का एक्सपीरियंस रहेगा, वो उन बच्चों से मिल चुके रहेंगे, तो रैपो डेवलप करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। और एक दो चीज मैं बोलना चाहूंगी कि बच्चे को आइडेंटिफाई करने में ही टीचर की सबसे बड़ी तकलीफ है। अगर बच्चे में कोई इशू दिखा तो वो सीधा यही बोलते हैं स्पेशल स्कूल में डालो। पूरी गलती उनकी नहीं है, क्योंकि उनको नहीं जानकारी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब एजुकेशन सिस्टम में ही एक आइडेंटिफिकेशन फॉर्म बनाना चाहिए, एक असेसमेंट फॉर्म, एक स्क्रीनिंग होना चाहिए, जिसमें टीचर जो है हर बच्चे का केस हिस्ट्री ले सके और उसमें मतलब डायग्नोज कर सके कि इस बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम है। मान लो किसी बच्चे का बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिविटी इशू दिखता है, तो टीचर को पहले से पता रहेगा, वो उसी तरीके से उनको एंगेज करेंगे। हो सकता है वो उनको सामने बिठाएंगे पहले से ही, हो सकता है वो उनको मोटिवेशन देंगे, ज्यादा रेनफोर्स करेंगे ताकि बच्चा मोटिवेट हो और ज्यादा अटेंशन दे। तो ये उनके लिए भी बहुत ही दुविधा ही है कि 60 बच्चों के साथ वो ऐसे 2 बच्चों के साथ अलग से डील करे, क्योंकि उनके मतलब मैं देखती हूँ स्कूल में कि टीचर्स को पढ़ाने के अलावा बाकी ड्यूटीज भी बहुत होती है, तो वैसे ही वो शायद थोड़े थक जाते हैं। तो अगर ट्रेनिंग ही ऐसा मिले, शुरुआत एंट्री ही उनकी वैसी हो किसी स्कूल में, तो वो पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना है, मैं इसके बारे में जानती हूँ। तो ये ज्यादा हेल्पफुल होगा। शैलजा ने जो एक रोल प्ले किया, शी बिकेम अ स्पेशल एजुकेटर। मुझे लगता है शायद ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, एक पार्टनरशिप जैसा हो जाएगा। हाउ प्रैक्टिकली इट कैन बी वर्कड आउट इज समथिंग वी विल हैव टू सी। But if the mothers become special educators who can accompany the child, we can train the mothers, the parent, whichever parent is willing to do that. तो ये एक कुछ हम लोग को एक पार्टनरशिप में एक स्ट्रैटेजिक तरीके से काम करने की जरूरत बहुत ज्यादा है, और हमको बहुत सारे थेरेपिस्ट चाहिए, स्पेशल एजुकेटर्स चाहिए। सो आई वुड लाइक टू अपील टू ऑल द पेरेंट्स हु आर लिसनिंग इन एंड एनी यंगस्टर्स हु आर लिसनिंग इन कि आप प्लीज इस फील्ड में इंटरेस्ट लीजिए, आप देखिए इसमें बहुत कंट्रीब्यूट करने का स्कोप है। और मॉनेटरी, जस्ट लाइक लक्ष्मी सेड, पैसा तो हम बहुत सारे तरीकों से कमा सकते हैं, लेकिन इस फील्ड में आके आपको जो संतोष मिलेगा, आपको जो अंदर से एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसका कोई मोल नहीं है। वो एक अमूल्य चीज है। आपने अगर एक बच्चे को भी थोड़ा सा हेल्प किया प्रोग्रेस करने में, आपने उसको एक इस लेवल से एक नेक्स्ट लेवल तक ट्रेन किया, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है आपकी ग्रोथ में भी। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी यहाँ पर, जब पेरेंट्स थेरेपी के लिए जाते हैं तो थेरेपिस्ट से थेरेपी सीख सकते हैं और उसी को घर पर रिपीट करवा सकते हैं, उसका ट्रेनिंग ले सकते हैं, होमवर्क ले सकते हैं, और जो थेरेपिस्ट उनको गाइड करते हैं उसी तरीके से अगर वो कराए तो बच्चे को शायद दिन में 2 बार या 3 बार सेम थेरेपी मिलेगी और डेवलपमेंट ज्यादा मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। शैलजा, आई एम श्योर इसके बारे में आप कुछ कहना चाहती हैं। हाँ बिल्कुल मैम, सभी पेरेंट्स की इच्छा होती है कि हम जो बच्चे को जहां भी थेरेपी के लिए लेके जा रहे हैं, तो जो थेरेपिस्ट होते हैं वो हमें बताएं
पर मैम मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैं बहुत जगह अजातशत्रु को लेके गई शायद पिछले 15 ईयर्स में, पर हम जब तक वो थेरेपिस्ट से पूछते नहीं है कि अभी हमको क्या कराना है और हमको क्या करना चाहिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है, किसी थेरेपिस्ट ने हमें अपने से बुला के कभी नहीं बताया कि आप अपने बच्चे के साथ ये करिए। और कई बार हमने कोशिश की कि हम अंदर जाके देखें अपने बेटे को कि क्या कर रहा है, तो वो बोलते थे नो मैम, अंदर आपको जाना अलाउ नहीं है। क्यों अलाउ नहीं है मैम? क्यों ट्रांसपेरेंसी नहीं है? Yes. जब मैं ही नहीं देख पाऊंगी कि मेरा बच्चा अंदर क्या कर रहा है, तो मैं घर आके उसको क्या ट्रेंड करूंगी कि अगर वो अंदर कर रहा है तो क्या अच्छे से कर रहा है या वहां भी वो टाइम पास कर रहा है जैसे मेरे घर में करता है। तो मैंने तो कई बार ऐसे देखा मैम कि बच्चे अंदर जाके टाइम पास करते हैं और उन थेरेपिस्ट की भी गलती नहीं है, क्योंकि जो मेन थेरेपिस्ट है वो तो केबिन के अंदर है, और जो उन्होंने 2-4 जो रखे हैं अपने ट्रेंड करने के लिए, वो भी बेचारे थक जाते हैं, सुबह से शाम तक क्लास ले रहे हैं और उनको आउटपुट में मिलता केवल 5,000 रुपीज होगा शायद मैक्सिमम, मुझे ऐसा। तो उनका भी बेचारों का काम करने का जो भाई, या तो हमको पेमेंट उस हिसाब से मिले तो हमारे काम करने का वो रहेगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि इन बच्चों को बंद कमरे में ट्रेनिंग नहीं करना है, ओपनली ट्रेनिंग दीजिए ना, पेरेंट्स देखे ना क्या कर रहा है हमारा बच्चा। क्योंकि मैम शायद ये पेरेंट्स जिनके बच्चों को दिक्कत होती है ना, उनके लिए कहीं भी लेके जाना एक अंधा कुआं जैसा रहता है, जहां उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चा वहां से सेफली निकल पाएगा अच्छा बन के या डूबेगा, है ना। और आप कहीं भी जाएंगे तो वो यही कहते हैं कि ये सब बहुत टाइम, सबसे पहले तो वो आपका ऐसे ही बताएंगे कि ये बहुत टाइम टेकिंग है, ऐसा है। मैं मानती हूँ बहुत नॉर्मल बच्चों को जो चीज हम एक बार में सिखा सकते हैं, इन बच्चों को शायद 10,000 बार भी हमको उनकी क्लास लेना पड़ता है तब ये सीखते हैं। अजातशत्रु को मुझे ABCD अल्फाबेट ही लिखाने के लिए मुझे शायद मैम 4 से 5 साल लग गए वो A to Z लिखने में, है ना। तो बहुत बड़ा टास्क है, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरा बस ये एक गवर्नमेंट को भी इसके लिए शायद सभी को कि क्यों बंद कमरे में ट्रेनिंग देना, क्यों नहीं सबके बीच इन बच्चों को ट्रेनिंग, एटलीस्ट पेरेंट्स के सामने। हाँ, बच्चे को कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम है, कुछ है, तो मैम 1 to 1 तो वैसे भी लेते हैं, तो आप उसको एक अलग जगह लेके बैठ सकते हो। पर मुझे नहीं लगता कि ये बच्चे भी नॉर्मल बच्चों के साथ ट्रेनिंग नहीं कर सकते या कुछ भी। बिल्कुल, अगर हम चाह लें ईमानदारी से तो हम हर जगह इनको भी ट्रेंड कर सकते हैं, बस ईमानदारी होना है मैम। ये मुझे लगता है कि शैलजा ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोल दी कि इसमें ईमानदारी होनी चाहिए, हमारे अंदर एक वो कमिटमेंट होना चाहिए, और ईमानदारी वाला जो एलिमेंट है कि हम जो करना चाहते हैं उसको हम मन से कर रहे हैं, हम उसको शेयर कर सकते हैं पेरेंट के साथ, हम कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हम उनको भी एजुकेट करेंगे तो इट इज लाइक अ लूप, इट विल बी कंप्लीटेड। अगर हम पेरेंट को एजुकेट करेंगे, पेरेंट हमारी भी हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज घर जाके तो वो ही रहेंगे बच्चे के साथ में। तो ये पार्टनरशिप एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। लक्ष्मी, मुझे लगता है ये जो हम लोग एक अगर समाज के नजरिए से देखें इस चीज को, तो उसमें कहीं ना कहीं फियर का एलिमेंट रहता है कि ये बच्चा मेरे बच्चे को हार्म तो नहीं कर देगा, इसका कोई बिल्कुल। भरोसा नहीं है। तो इस चीज को किस तरीके से देखना चाहिए, एंड एज अ पेरेंट वील कम टू शैलजा ऑल्सो, बट वील स्टार्ट विद लक्ष्मी कि इसमें कितना सत्य है और इसको आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। शैलजा मैम ने जो पॉइंट रखा उस पे मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगी कि बंद कमरे में थेरेपी नहीं देनी चाहिए, इस बात से मैं बिल्कुल ही सहमत हूँ, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। पर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत स्टबन हो जाते हैं। मान लो अगर पेरेंट सामने बैठे हैं तो वो हमारे इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे, कमांड फॉलो नहीं करेंगे, हम जो उनको बोलते हैं वो फॉलो नहीं करते हैं, तो कई बार हमको पेरेंट्स को बाहर बिठाना पड़ता है। पर हर बार नहीं बिठाना है। मतलब आप जैसे कि शैलजा मैम ने कहा कि हमको वो कभी तो बुला सकते हैं, बिल्कुल बुला सकते हैं, बिल्कुल पेरेंट्स अंदर बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर आपके पास ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि बच्चा पेरेंट्स को नहीं देख रहा है पर पेरेंट्स बाहर से बच्चे को देख पा रहे हैं कि क्या थेरेपी हो रही है। इसमें बिल्कुल भी कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल ही, क्योंकि पेरेंट्स हमको पे कर रहे हैं और उनके राइट्स है जानने के कि
वो बच्चा कर क्या रहे हैं। दूसरी चीज, जैसे कि मैंने बताया कि उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमको कई बार पेरेंट्स को बाहर बिठाना पड़ता है, तो उसके लिए मतलब मैं ये पॉइंट रखना चाहूंगी कि उस समय तो शायद पेरेंट को बाहर बैठना पड़ेगा। और दूसरी चीज, जैसे उन्होंने कहा कि थेरेपिस्ट जो है केबिन में बैठे रहते हैं, तो एज अ थेरेपिस्ट मेरे पास अगर 20 बच्चे हो तो पूरे 20 बच्चों के लिए मैं अकेली काम नहीं कर पाऊंगी। हाँ, जरूर मुझे उसके लिए दूसरे लोगों को हायर करना होगा, ट्रेन करना होगा। हाँ, लेकिन मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैंने जिनको हायर किया है क्या वो क्वालिफाइड है, क्या वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर पा रहे हैं, क्या वो बच्चे को ट्रेन करने में सक्षम है। ये सब देखने की जिम्मेदारी एज अ थेरेपिस्ट मेरी है। और जो भी ट्रेन कर रहे हैं वो मेरे ही मतलब जो कोई भी थेरेपिस्ट है उनके गाइडेंस के अंडर ही बच्चों को थेरेपी दे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। क्योंकि जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं ना मैम, तब वो लोग बस यही बोलते हैं कि अब आप ही मतलब आखिरी उम्मीद हो, इसके बाद पता नहीं है हमको क्या करना है, हम थक हार के आपके पास आए हैं। तो किसी भी बच्चे को नहीं बोलना भी मतलब ऐसा लगता है कि कैसे नहीं बोले, वो इतनी उम्मीद लेकर आए हैं। तो हम भी अपनी तरफ से हर बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हैं। थोड़े बहुत लूप होल्स है, अकेले हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको भी सपोर्ट चाहिए रहता है। तो इसमें जरूर पेरेंट का कोऑपरेशन हमको चाहिए है। और मैडम ने जो बोला मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ। और रही फियर की बात, जैसे कि सोसाइटी में जनरली टीचर्स को पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ये बच्चा इनको मार देगा। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि पेरेंट्स ने अगर सही समय पर सही थेरेपी, जैसे मैंने बताया कि हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे सकते हैं, उससे वो थोड़ा काम डाउन होगा। या बहुत ही ज्यादा है, कंट्रोल के बाहर है, तो आजकल मेडिकेशन भी दिया जाता है, वो भी पेरेंट्स दे सकते हैं। और टीचर से जाके बात करें कि एक्चुअली वो मारना नहीं चाहता है, पर उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो चैनलाइज करना चाहता है, उसको कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है। और उसको ये नहीं पता कि इसको मार के इन्वेस्ट करना है, खेल के इन्वेस्ट करना है या पुश करके करना है। उसको जो समझ में आ रहा है वैसे वो बिहेव करने की कोशिश करता है। तो ये जो वार्तालाप है हमको कंटिन्यूअसली टीचर के साथ, जो भी हमारे पड़ोसी है, जहां पर भी हम रहते हैं, जिनके साथ भी रोज बच्चा डील करता है, उनको हमको अवेयर कराना पड़ेगा, तब शायद हमको कोऑपरेशन मिल सकता है, ऐसे मुझे लगता है। Yes, Shelja, please go on. हाँ मैम, मैं ये कहना, जैसे मैम ने बोला कि खेल, इन बच्चों की हमको एनर्जी बर्न आउट करना है। तो मैम जैसे कई बार बच्चे ग्रुप में नीचे खेलने गए पर वो उन बच्चों के साथ खेल नहीं पाते क्योंकि उनको उनके रूल्स समझ में नहीं आते। और वो भी बच्चे ही हैं, वो भी उनको अवॉइड करते हैं कि अरे इसको खिलाने से हमारा गेम बिगड़ रहा है, हम नहीं खेलेंगे इसके साथ। तो मुझे लगता है कि जैसे बच्चे या बास्केटबॉल या क्रिकेट हम कहीं भी इंस्टीट्यूट या कोचिंग में लेके जाते हैं, तो हमारा बच्चा तो बस वो बास्केटबॉल लेके खड़ा ही रहता है। जो वहाँ कोच भी होते हैं वो उन्हीं बच्चों को सिखाते हैं जिनको बन रहा है। तो मैम मुझे लगता है कि ऐसे इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहां इन बच्चों को ट्रेंड किया जाए। ऐसे एजुकेटर्स हो गेम्स को सिखाने वाले भी, जो इन बच्चों को सिखाएं नॉर्मल बच्चों के साथ। तो इन बच्चों को इतना खुशी महसूस होता है। मैम अजातशत्रु को मैं बास्केटबॉल के लिए लेके जाती थी, तो मैंने एक स्पेशल एजुकेटर जो ट्रेंड था, मैंने बोला सर से मैं इसकी भी फीस दूंगी सर, अगर आपको लगता है कि 2 लोगों की एंट्री है तो मैं उसकी भी फीस, पर उसको उसके साथ रहने दीजिए। और अजातशत्रु को उसने बास्केटबॉल मैम खेलना सिखाया। फिर मैं उसको यहाँ मेरे घर से शायद मुझे लगता है 14 किलोमीटर होगा जहां मैं उसको स्विमिंग के लिए लेके जाती थी। तो वो उनका कहना था कि आप अपने बच्चे को मैं ऊपर से छोड़ दूंगा, आपको हिम्मत रखनी है कि आप डरोगे नहीं, बाकी वो डूबेगा नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैम मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा टास्क था कि आजाद को उसने 10 फीट ऊपर से नीचे फेंक दिया और आजाद थोड़ी देर अंदर पानी में ही रहा आया। फिर वो पानी तो अपने को ऊपर फेंकेगा ना, आजाद ऊपर आया तो उन्होंने पकड़ लिया। लेकिन मैम मैं उसको शायद 3 मंथ लेके गई और आजाद स्विमिंग सीख गया, जिसके लिए मैंने बहुत जगह लेके गई, आजाद नहीं सीख पा रहा था, कई जगह मैं लेके गई। लेकिन क्योंकि ऐसे एजुकेटर्स चाहिए जो इन बच्चों के लिए काम करे, मेरा ये कहना है, और ईमानदारी से काम करे, चाहे वो खेल का एरिया हो, चाहे उनकी थेरेपी का एरिया हो, चाहे पढ़ाई का एरिया हो, हर चीज में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए।
मुझे लगता है इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज मुझे दिखी, जो कि ये है कि आपको उन्होंने बोला कि आपको बहुत हिम्मत दिखानी पड़ेगी। तो ये जो पेरेंट्स हैं जिनके पास एक स्पेशल चाइल्ड है, उनकी जो हिम्मत है वो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि कितने वो ब्रेव हैं, क्योंकि वो नॉट ओनली उस सिचुएशन से डील कर रहे हैं, वो उन लोगों से भी डील कर रहे हैं जो उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, जो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं किसी भी तरीके से। तो लक्ष्मी, आपने इतना काम किया है इन बच्चों के साथ, और आप ये बताइए कि हम लोग जब थेरेपी की बात कर रहे हैं, इंटरवेंशंस की बात कर रहे हैं, व्हेन दिस चाइल्ड बिकम्स एन एडल्ट, वो किस तरीके की लाइफ लीड कर सकते हैं एट बेस्ट? यस मैम। बच्चा जब 14 साल से ऊपर मतलब 14 साल के हो जाते हैं तो प्री वोकेशनल जोन में चले जाते हैं। अगर मान लो ज्यादातर बच्चे हम यही देखते हैं कि वो नॉर्मल लोगों की तरह जॉब नहीं कर पाएंगे, है ना। वो बैंक नहीं जा पाएंगे, वो डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, लेकिन प्री वोकेशनल ट्रेनिंग अगर हम उनको दे, मान लो किसी बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा है, फाइन मोटर स्किल अच्छा है, उनका टाइपिंग स्किल अच्छा है, राइटिंग स्किल अच्छा है, तो ऐसे हमको फाइंड आउट करके उनको उस तरीके के स्किल सिखाने होंगे। तो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं मैम, 18 साल के बाद वो ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है 14 साल के बाद ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पर अलग अलग चीजें सिखाई जाती है, पेंटिंग करना सिखाया जाता है, दिए बनाना सिखाया जाता है, मैट बनाना, मतलब बहुत सारी अलग अलग चीजें वहां पर मतलब उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो हमारे स्टूडेंट में कौन सा स्किल अच्छा है, वो स्किल को ही वो आगे बढ़ाकर उनको ट्रेनिंग देते हैं, ताकि बच्चा अपना जो फ्यूचर है, अपनी जो लाइफ है, वो आराम से जितना उनको आता है उस काम को सीख कर वो आगे बढ़ा सकते हैं। शैलजा, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं। तो अजात शत्रु इज has autism, but he's also a child. He's a son, he's a brother. तो आपके कुछ ना कुछ जरूर एक हैप्पी मोमेंट्स होते होंगे जब आपको बहुत अच्छा लगता होगा। सो शेयर समथिंग वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ स्पेशल मॉम। यस मैम, एक्चुअली सबसे मेरा हैप्पी मोमेंट तो वो है मैम कि जैसे इतने एज में जो बच्चे रहते हैं, जैसे जैसे बॉयज बड़े होते हैं, तो वो आप आजकल आप देख रहे हो सब माँ पापा से दूर होना चाहते हैं, वो अपनी दुनिया जीना चाहते हैं। पर ये बच्चे बहुत इनोसेंट है मैम, वो हमेशा अपने माँ के इर्द गिर्द ही उनकी सारी दुनिया है ना। जो माँ ने जो कह दिया मतलब वो एकदम उनके लिए 100% चीज रहती है कि हाँ मेरी माँ ने कहा तो ये बिल्कुल सही है। और मैम एज ए ब्रदर अजात शत्रु अपनी सिस्टर का इतना ध्यान रखते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती कि वो बचपन से ही जब वो स्कूल से आता था और अगर उसकी सिस्टर स्कूल से आई और सपोज वो किसी कमरे में, तो जब तक वो देख नहीं लेता था मैम उसको कि वो कहाँ है, उसके बाद ही वो अपना बैग कंधे से नीचे उतारे, मम्मा इनू कहाँ है, उसके बाद ही। तो मैम ये बच्चे बहुत ही मतलब सब फैमिली से अटैच रहते हैं। और मुझे तो मतलब इवन मेरी फैमिली में सब लोग कहते हैं कि ये नॉर्मल बच्चों से ये बच्चे ज्यादा अच्छे हैं, कि ये ज्यादा वो 3-5 तो नहीं जान रहे कि कौन अपना है कौन पराया है। उनके लिए तो सारे सब अपने, पर सामने वाले को भी उनको अपने जैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत अच्छी बात भाई मैं तो माँ हूँ, मैं तो उसको एक्सेप्ट करूंगी मैम, पर वो जिस ईमानदारी से सामने वाले को प्यार कर रहा है तो उसको भी उसको उसी हिसाब से वो करना चाहिए। उसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए मैम, जो कि फैमिली में भी नहीं होता है। मैं करूंगी लेकिन मेरे रिलेटिव्स नहीं करेंगे हैं। तो और ऐसा नहीं कि ये बच्चे समझते नहीं है, ये भी बच्चे बहुत इमोशन समझते हैं मैम, है कि कौन हमारे साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है कौन। कई बार अजात शत्रु मेरे से शेयर करेगा, मम्मा वो ऐसे कर रहे थे, मम्मा वो वैसा, मतलब तो मुझे लगता है कि अरे ये समझ भी इनको है कि हाँ ऐसा उन्होंने हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया उन्होंने। तो मैम इन बच्चों को बहुत हमको प्यार से बहुत पेशेंस से डील करना पड़ता है, और तभी हम इनको कुछ सिखा सकते हैं। और गुस्सा कर, और हमेशा इनको एक अवार्ड, जैसे कि आपने ये काम अच्छा किया बेटा तो इसके लिए हम आज आपको कहीं लेके जाएंगे, घुमाने लेके जाएंगे, रेस्टोरेंट में खाना, ये सब भी बहुत जरूरी रहता है मैम। तो वो बच्चे फिर सोचते हैं कि मैंने ऐसा किया था, मेरी मम्मा मुझे लेके गई, मेरे पेरेंट्स लेके गए, तो मैं और अच्छा करूंगा। ये चीजें भी मैं हर पेरेंट्स को कहना चाहूंगी कि पेशेंस बहुत रखना है, पेशेंस को लेके ही आगे बढ़ना है। और हमेशा अगर वो कुछ अच्छा करते हैं
तो उनको उसके लिए अवार्ड भी देना है कि आज आपने ऐसा, और हाँ गलत करते हैं तो उसमें उनको पनिशमेंट भी थोड़ा बहुत डांटना है कि ऐसा नहीं बेटा, ये ऐसा नहीं करना है। और उसका सबसे अच्छा वो रहता है कि शायद ये बच्चे अपने पेरेंट्स से बहुत अटैच होते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है कि मैं आजाद को बोलती हूँ कि मैं अब आपसे आज बात नहीं करूंगी, तो उसको लगता है कि हाँ मैंने आज कुछ गलती की तभी माँ मेरे से नाराज है। और अगर मैं मैम 10 मिनट्स भी उससे बात नहीं करती तो उसके लिए बहुत उसका फिर किसी काम में मन नहीं लगता। मम्मा सॉरी मैं अब नहीं करूंगा, तो वो भी रियलाइज कराना जरूरी है कि आपने गलत किया। तो पेशेंस के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे तो बच्चे सपोर्ट करते हैं, और आजाद बहुत मेरा सपोर्ट करता है मैम, बहुत अभी तो पहले से बहुत अच्छे हो गए। अपना सारा काम मुझे कुछ इवन जैसे मैम बोल रही कि हमको घर के काम में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, आजाद शत्रु एवरीडे कपड़े निकालेंगे, उसमें शॉर्टिंग करेंगे किसके किसके कपड़े, वो मैंने उसको पूरा ट्रेंड किया क्योंकि उसको भी थोड़ा फाइन मोटर का, तो उसका डॉक्टर का कहना है कि जितना घर की एक्टिविटी करेगा उतना उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। तो वो कपड़े पूरे बर्तन रैक में लगाते हैं, छोटे छोटे काम में उनसे, मैं नहीं कहती कि बिल्कुल परफेक्ट करते हैं, लेकिन करेंगे 2 साल 4 साल फिर परफेक्ट धीरे धीरे तो हो ही जाएंगे मैम। और एक बात आपने जो बोली, मैं इस पे थोड़ा बात करना चाहती हूँ कि जो समाज है वो तो एक बाहर की चीज हो गई, लेकिन जो परिवार के लोग हैं उन्होंने आपके साथ किस तरीके से आपको सपोर्ट किया, या उनका क्या रोल रहा, और आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? मैम मैं इंडिविजुअली मेरे फैमिली के लिए कहूंगी तो मेरे फैमिली चाहे बहुत सपोर्ट किया मुझे, मेरे इन लॉज ने, मेरे मदर फादर ने, मेरे भाई बहनों ने, सब कोई सभी का अजात शत्रु के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहता है कि, लेकिन मैम बहुत सी फैमिली ऐसी हैं कि जिनमें लेडीजों को बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है। वो सारा दोष कि इनमें कुछ कमी होगी इसलिए ऐसा बच्चा हो गया, हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं था, लोग इस तरीके से भी बोलते हैं। तो प्लीज इस तरीके का ये किसी के बस में नहीं है। इवन डॉक्टर भी नहीं जानता है कि पेट के अंदर बच्चा है तो वो कैसा है, वो तो निकलने के बाद ही पता चलता है मैम कि उसको कुछ दिक्कत है। मेजर दिक्कत होगी तो वो पता, लेकिन ये जो बच्ची स्पेशल किड्स का बहुत कम समझ में आता है मैम कि बच्चा जब बाहर आएगा तभी पता। इवन अब अजात शत्रु ही आया मैम तो हम थोड़ी जानते, इवन डॉक्टर भी नहीं जाने 2 साल तक कि उसको ऐसी कोई दिक्कत है। वो तो जैसा मैम ने कहा कि डेवलपमेंट डिले होते हैं, तो फिर पेरेंट्स भी थोड़ी कि ऐसा क्यों हो रहा है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। इसलिए किसी को ब्लेम मत करिए, और आप अगर फैमिली साथ नहीं देगी मैम तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी को भी आगे बढ़ने के लिए। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है, और मैं सबसे कहूंगी कि जरूर सपोर्ट करिए, तभी आगे आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा आपको अपने बच्चे के प्रति। लक्ष्मी, क्या हमारे जो समाज में लोग हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू कम से कम 10 में से 4-5 लोग इस चीज के बारे में अलग तरीके से सोचे। जैसे शैलजा ने कहा कि कभी कभी हम उनको रेस्टोरेंट में ले जाते हैं, तो एक मेरा पर्सनल अनुभव है, हम लोग एक बार गए थे और वहां पर एक फैमिली अपने कुछ सेलिब्रेट करने आए हुए थे। देयर वाज वन चाइल्ड हाइपर एक्टिव, बाकी लोगों ने इतना उनको ऑकवर्ड फील कराया, एवरीबडी स्टेयरिंग कॉन्स्टेंटली, नजिंग, वो एक जो बॉडी लैंग्वेज से कभी कभी बोल के भी। तो आप क्या कहना चाहेंगी कि इस चीज के बारे में लोगों को हम कैसे सेंसिटाइज करें? लक्ष्मी। श्योर। सबसे पहले तो मैम स्कूल का जो है ना सबसे बड़ा रोल है इसमें, मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल अगर एक यूनिट मतलब सभी स्कूल ये इनिशिएटिव ले और ऐसे बच्चों को थोड़ा इंक्लूड करने की कोशिश करे, जरूर एक्सपर्ट के साथ ही, स्पेशल एजुकेटर के साथ ही, तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल बच्चे भी उनको देख पाएंगे, वो मतलब उनके साथ थोड़ा समय बिता पाएंगे। जैसे लंच टाइम है वो साथ में कर सकते हैं, ग्राउंड में जब वो खेल रहे हैं तो साथ में खेल सकते हैं। तो ऐसे जब बच्चे एक दूसरे को देखेंगे तो ही वो उनको समझ पाएंगे, उनकी मदद कर पाएंगे। अचानक क्या होता है, अचानक स्पेशल पेरेंट्स की उम्मीद भी यही होती है कि जब मेरा बेटा गिर गया तो वो तो समझता था, उसको उठाना चाहिए था, उसको मदद करनी चाहिए थी। पर मुझे ये बताइए, क्या कभी उस बच्चे ने ऐसे बच्चे देखे हैं? क्या कभी उनको पता है कि ऐसी भी मतलब इस तरीके के भी बच्चे होते हैं जिनको समझ नहीं आता है, उनको किसी की सपोर्ट की जरूरत होती है? तो मुझे ऐसा लगता है स्कूल्स जो है मैम ये इनिशिएटिव
ले सकता है। और दूसरी चीज, जैसे अभी ये ऑटिज्म अवेयरनेस डे आ रहा है 2 अप्रैल को, तो ऐसे दिन में हमको, जैसे हम रोल प्ले कर सकते हैं, सड़क पर जाकर लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं ऑटिज्म क्या है, और मतलब एक्चुअली स्पेशल बच्चे क्या है, कितने तरीके के बच्चे होते हैं, उनको किस तरीके के सपोर्ट की जरूरत होती है, पेरेंट कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं। मान लो हमने 100 लोगों को भी बताया तो कम से कम 10 लोग अवेयर हो पाएंगे, 10 लोगों को उनकी जानकारी होगी, है ना। तो ऐसे हमको जब भी स्पेशल एजुकेशन का कोई भी डे, कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, डे होता है, तो मुझे ऐसा लगता है सोसाइटी में हमको अवेयर करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है नॉर्मल स्कूल्स में भी मैम इनिशिएटिव लेके ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, ऐसे वर्कशॉप होने चाहिए। टीचर्स के लिए तो वर्कशॉप कंपलसरी होनी चाहिए कि उनको पता चले कि क्या है स्पेशल एजुकेशन, क्या है स्पेशल बच्चे, उनको भी पढ़ने के अधिकार है, ये सब टीचर्स को पता होने चाहिए। और जैसे हम देखते हैं कि सिलेबस में बुक्स, स्टोरी बुक्स होती है बच्चों के लिए, तो क्यों ना उसमें एक सब्जेक्ट डाल दिया जाए, क्यों ना उसमें स्टोरीज डाल दी जाए स्पेशल बच्चों के बारे में कि ऑटिज्म क्या है। जब मतलब स्टोरीज होती ही है, हम हिंदी की किताब देखते हैं उसमें स्टोरीज होती है, जनरल नॉलेज की किताब देखते हैं उसमें जनरल नॉलेज होता है। मुझे नहीं पता कौन सा सब्जेक्ट आएगा, कैसे आएगा, पर हाँ जरूर एक बुक हम मतलब ऐड कर सकते हैं सिलेबस में कि स्पेशल एजुकेशन क्या है, उनको ट्रीटमेंट कैसी मिलती है, वो कैसे स्ट्रगल करते हैं अपने लाइफ में, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या थेरेपीज उनको दी जाती है। तो इससे क्या होगा, जब टीचर पढ़ा रहे तो टीचर भी एजुकेटेड होंगे और बच्चों में भी अवेयरनेस आएगा, वो भी जान पाएंगे कि इस तरीके की कोई चीज होती है। ऐसा मुझे लगता है। तो स्कूल का बहुत ही बड़ा रोल है मैम। और मैं सच में थैंकफुल हूँ कि मैं जहाँ काम करती हूँ सरस्वती विद्यालय, वहां पर मैं 2 साल से काम कर रही हूँ एज अ स्पेशल एजुकेटर। तो जितने भी बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी का इशू है, वहां पर उन सभी बच्चों के लिए रेमेडियल सेशंस होते हैं। और 2 साल में ही स्कूल के मैनेजमेंट ने ये इनिशिएटिव भी लिया और एक सेंटर ओपन किया, संजीवनी रेमेडियल एजुकेशन सेंटर फॉर स्पेशल किड्स। तो हमारे पास स्कूल का ये कॉन्सेप्ट था कि हमारे स्कूल के बच्चों के लिए तो हम काम कर रहे हैं, पर बाहर के बच्चों का क्या। तो उन्होंने इनिशिएटिव लेके एक सेंटर ही ओपन कर दिया जहां पर बाहर से बच्चे आकर अब हमारे पास थेरेपी ले रहे हैं। तो ऐसे अगर और कुछ स्कूल ने इनिशिएटिव लेके सेंटर्स ओपन किए तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये बहुत ही बड़ा बदलाव सोसाइटी में आ सकता है। तो ऐसा मतलब ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स हमको लेने चाहिए। और रही, जैसे मैडम बोल रही थी कि हर किसी ने अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, ये 100% सही बात है कि ये तो फिर हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम अपने काम को कैसे करना चाहते हैं, हम अपने पैसे को कैसे कमाना चाहते हैं, हम अपने बर्ताव को कैसे दिखाना चाहते हैं, हम अपना सपोर्ट कैसे देना चाहते हैं। ये हमारी पर्सनल मतलब अपना ओपिनियन है। तो सच में पेरेंट्स को एक स्पेशल एजुकेटर की, एक थेरेपिस्ट की बहुत ही ज्यादा मदद की जरूरत होती है। तो सभी ने अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी समझकर सही तरीके से गाइडेंस दिया तो बहुत बदलाव आ सकता है। शैलजा। हाँ मैम, मेरा ये कहना है, जैसे मैम बोल रही कि हम स्कूल के माध्यम से अवेयर कर सकते हैं, बिल्कुल मैं इसके लिए एग्री हूँ कि जैसे स्कूल में एनुअल डे होते हैं, जब सारे पेरेंट्स भी वहाँ बच्चों को अवेयर तो हम करेंगे, तो बच्चे ही हैं मैम, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे फंक्शंस हो जब, तो नॉर्मल बच्चों के प्रोग्राम से ज्यादा इन बच्चों का प्रोग्राम दीजिए और पेरेंट्स को अवेयर करिए कि ऐसी भी प्रॉब्लम बच्चों में होती, जो वहाँ आपके पास सपोज 500 बच्चे स्कूल में हैं, तो 500 पेरेंट्स भी एनुअल डे के दिन, तो सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हम अपने बच्चे का प्रोग्राम देखने जाएं। तो वो एक सबसे अच्छा माध्यम है कि वहां हम लोगों को अवेयर करा सकते हैं। क्योंकि ऐसे हम प्रोग्राम करेंगे मैम, सपोज मैं जैसे मैम बोल रही कि हम प्ले कर सकते हैं सड़कों में, पर मैम उसमें से 100 में 5 ही लोग आपको बैठ खड़े होके देखेंगे, है ना। तो स्कूल ही एक ऐसा मीडियम है जो बहुत लोगों को अवेयर कर सकता है कि उनके एनुअल डे होते हैं, तो उस समय सारे पेरेंट्स जिनके बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है
वो भी आते हैं, तो उनको ही पहले अवेयर करना है। जिनके बच्चों को प्रॉब्लम है वो तो ऑलरेडी अवेयर है मैम। बिल्कुल। तो ये जो हम लोग ने पहल की है, शुरुआत की है, तो अरुणिम अंकुरन हमेशा एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए बीज बोने की कोशिश करता है। इस वार्तालाप के द्वारा हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं समाज में कि जो स्पेशल बच्चे हैं वो स्पेशल और यूनिक है जैसे कि सब कोई हैं। हम उनको किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्लूड करिए, उनको एम्ब्रेस करिए। सेंसिटाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मुझे लगता है कि शैलजा जो बोल रही है एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब पेरेंट्स ऐसे बच्चों के प्रति एक पॉजिटिव रवैया दिखाएंगे, वो अपने बच्चों को भी ये मैसेज दे पाएंगे कि यू हैव टू ट्रीट देम लाइक फ्रेंड्स। वो कोई आपसे कोई बहुत अलग नहीं है, आप उनको एक्सेप्ट करिए, उनकी समस्या को समझिए, लेकिन एम्ब्रेस करिए, इंक्लूड करिए, एक्सेप्ट करिए। पीयर ग्रुपिंग इन बच्चों के लिए बहुत ही हाँ। एडवांटेज लेके आता। मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि हम बैंगलोर में थे, तो हम जिस सोसाइटी में रहते थे, अजात शत्रु नीचे साइकिलिंग के लिए जाते थे। तो हाँ। वहां पे एक बच्चा था जो बहुत दिनों से मैं देखती थी उसको कि वो आजाद को ऑब्जर्व करता था, और वो आजाद के एज का ही था। फिर धीरे धीरे एक दिन वो मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा कि आंटी आपके बेटे को कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैं बोली आपको देख के ऐसा क्यों लगा? तो उसने बोला नहीं, वो हम लोग, मैं चाहता हूँ कि मैं उससे दोस्ती करूं पर वो हमारे साथ मिक्सअप नहीं होता, पर आंटी मैं अजात शत्रु से दोस्ती करूंगा। तो मैं बोली बिल्कुल बेटा। और समझिए आप कि आजाद इतना खुश होता था कृष्णा को देख के, उसका नाम कृष्णा था। तो वो जब भी साइकिलिंग, कृष्णा भी साइकिल लेके आता था, वो बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलता था, आजाद भी उसके साथ जाके बास्केटबॉल। तो ये जब नॉर्मल बच्चे इन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं बहुत अच्छे से, तो ये बच्चे बहुत खुश होते हैं। क्योंकि जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो वो भी बेचारे उतने अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनको भी प्रॉब्लम है। पर नॉर्मल बच्चे अगर ये चाहें कि हम इन बच्चों को इंटरेक्ट करें, इनके साथ दोस्ती रखें, तो ये बच्चे बहुत खुश होते हैं मैम। तो इसलिए मैं तो यही चाहूंगी कि जैसे मैम लक्ष्मी मैम अपने स्कूल के बच्चों को, जो नॉर्मल बच्चे हैं, उनको भी बोले कि इन बच्चों के साथ आप अच्छे से इंटरेक्ट करिए, उनको सिखाइए। ग्रुप में जब बच्चे खेल रहे हैं, तो मैं कहती हूँ क्लास में 35 बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम नहीं है, और उस ग्रुप में 5 बच्चे आप ऐसे ले लीजिए जिनको प्रॉब्लम है, तो 7 बच्चे भी उसकी हेल्प करेंगे तो वो बहुत सीखेगा। बहुत, बिल्कुल। और ये जो एक स्पिरिट है ना जिसमें कि हम लोग सब इकट्ठा होके चलेंगे, तो वो बहुत, उसका एक पॉजिटिव बिल्कुल नतीजा ही निकलेगा डेफिनेटली। यस और मैम। शायद एक बिल्कुल और चीज भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि स्कूल जब शुरू होता है, लक्ष्मी दिस इज अ सजेशन, मे बी यू कैन अबाउट इट। हर क्लास में एक सेशन स्पेशल एजुकेटर को लेना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए कि अगर कोई आपके एज ग्रुप के बच्चे इस तरीके से बिहेव करते हैं, आप उनको एम्बैरेस मत करिए, उनको ऑड फील मत कराइए, उनकी प्रॉब्लम को समझिए, क्योंकि आप उनके फ्रेंड बनेंगे तो उनको भी हेल्प होगी और यू विल बिकम अ बेटर पर्सन बाय दैट एक्सपीरियंस। यस यस मैम, ट्रू। मैम। और उसके लिए उसके पेरेंट्स को भी बहुत, जैसे कई नॉर्मल बच्चे चाहते हैं कि हम इन बच्चों से दोस्ती करें, पर उनके पेरेंट्स को क्या लगता है, अरे उनसे क्यों दोस्ती करोगे, उनको तो दिक्कत है, फिर तुमको भी ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए। मैं बता रही, हाँ। मेरा एक्सपीरियंस मैम ये। हाँ। तो वो भी नहीं चाहते कि उनके बच्चे इन प्रॉब्लम जिन बच्चों को है उनके साथ दोस्ती करें। तो हमको पेरेंट्स को भी अवेयर कराना है कि ये बच्चे कुछ, आपका बच्चा तो ऑलरेडी सब कुछ ठीक है, तो वो तो अच्छी ही चीज सीखेगा, पर अगर वो अपनी अच्छी चीज इनको सिखा देगा तो ये उसके आपके लिए भी बहुत बड़ी एडवांटेज होगी कि आपके बच्चे ने भी किसी को कुछ सिखाया लाइफ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी आपका और शैलजा आपका थैंक यू फॉर। प्रज्ञा, आपने हम लोगों को बुलाया इतने इम्पोर्टेंट मैटर में। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू मैम, थैंक यू। मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली एक्चुअली, और मैं इस मतलब सफर को आगे बढ़ाना चाहूंगी मैम आपके साथ। मैं मतलब और अवेयरनेस लाना चाहती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल तो मुझे सच में आपकी सपोर्ट की जरूरत है। बिल्कुल। आई एम बिल्कुल मोर देन रेडी टू हेल्प। और मुझे लगता है हम इस संवाद को, इसको शेयर करेंगे आगे भी जाके कि उन बच्चों को भी एक्सेप्ट करने की जरूरत है, एंड लव इज व्हाट दे नीड। सो लेट ऑल ऑफ अस ट्राई टू डू दैट। थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू थैंक यू प्रज्ञा, मैम, थैंक थैंक यू। यू।